Chairman of the editorial board of Lokmat Media Group, Dr. Vijay Darda, has written another book, Ringside, Up Close and Personal on India and Beyond. और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इस किताब में ना सिर्फ देश की राजनीति के एक ऐसे दौर का जिक्र किया गया है जो हर लिहाज से परिवर्तन भरा था, ट्रांजिशन फेज इसे कहा जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस किताब को पढ़ते हुए जरा सतर्क रहिएगा। सतर्क इसलिए कह रहा हूं कि मैं एक बार इसको कॉलम में पढ़ चुका हूं और दूसरी बार इस किताब के रूप में जब इसने आकार लिया तब मैंने पढ़ा है। तो सतर्क इसलिए रहना जरूरी है कि ये किताब जो है ये आपको बहुत स्पंदित करती है, ये आपको बुलबुलाती है, कई सवाल आपके सामने खड़े करती है और यही एक लेखक की असली पहचान भी होती है कि वो आपको सोचने के लिए विवश कर दे। तो डॉक्टर विजय दर्डा की किताब ऐसी ही किताब है। Lokmat, I continue to meet journalists from these newspapers, and it's always heartening to see the kind of maturity that they bring to the profession. I think merely because major national dailies have sunk to their lowest depths, I don't think those of us who have some familiarity with the other parts of the country should feel disheartened. And I compliment Darda ji and Lokmat Group for continuing to keep the flag of professional journalism flying. The Indian language press has developed the tradition of owner editors. Now, I am a professional journalist and editor, and I know there is a fundamental issue with owners becoming editors, but watching some of this from closely, and I worked with an owner editor, Arun Puri, and I learned much from him. I thought he was a better editor than most, so I am not judgmental about owners becoming editors. In fact, the tradition of owners becoming editors has contributed in a very interesting way, very strongly, to strengthening India's regional press, because the families, the owners themselves acquire not just a commercial stake but also an intellectual and philosophical stake in their institutions. So they become institution builders, as Mr. Darda has done. So once again, congratulations. Committed to a higher standard of journalism and reportage, our nation is better off for it. As the chairman of Lokmat Media Group, his astute leadership played a significant role in guiding Lokmat's journey from its origins in 1971 under his late father, Shri Jawahar Darda, whom we paid tribute to at the start of the afternoon, to its position today as one of India's largest regional newspapers, one that is widely recognized as a beacon of truth and credibility. And Vijay's unwavering commitment to responsible journalism has set new standards for the industry, emphasizing the importance of integrity, impartiality and efficiency. प्रशंसा करता हूं क्योंकि बहुत कम ऐसे एडिटर प्रोप्राइटर्स होंगे जो किसी पार्टी से खुलेआम जुड़े हुए हैं, लेकिन जब पत्रकारिता आती है तब वो ये बात नहीं सोचते कि ये जो खबर है इससे मुझे राजनीतिक नुकसान या फायदा क्या होगा। तो विजय बाबू, कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दैट। और मुझे लगता है अगर और इसी तरह से एडिटर प्रोप्राइटर हो तो इस देश में मीडिया जो है वो वाकई अपना काम, अपनी दायित्व जो है वो निभाएगी। वो जमाना चला गया, अब बहुत मुश्किल होगा विदर्भा बनना, स्थापित होना। क्या आप मानते हैं? देखिए, हर चीज मुश्किल होती है, कोई आसान नहीं होता और आसानी से कुछ मिलता नहीं है। सवाल यह है कि समय बदले पर योग्य समय आएगा जब विदर्भ होगा, विदर्भ राज बनेगा और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने लोगों का ध्यान रख सकता है, अपने लोगों का सम्मान कर सकता है, अपने लोगों का विकास कर सकता है और आगे बढ़ा सकता है। समय आएगा और ये भी आज न कल पॉलिटिकल निर्णय लेना पड़ेगा। चलिए, तो ये एक महाराष्ट्र के लिए आपने हेडलाइन दे दी कि विजय दर्डा जी ने कहा कि विदर्भा बनना ही है, किसी भी हालत में विदर्भा को बनाना है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है उसमें कहा कि जो विदर्भ की बात करने वाले लोग जब मुंबई में जाके तब वो भूल जाते हैं। 2024 में क्या समझते हैं, क्या मोदी जी हैट्रिक बनाकर फिर से आएंगे? आज का वातावरण ऐसा है जी कि जिसमें मोदी जी आ सकते हैं
और कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने कहा आप कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। क्या आप समझते हैं कांग्रेस में एक नेतृत्व परिवर्तन जो हुआ है, खड़गे जी आए हैं, क्या आप देखते हैं कांग्रेस का कोई रिवाइवल कर्नाटका के बाद, या आपको लगता है कांग्रेस मुझे ऐसा अभी दिल्ली दूरस्थ है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है, देखिए खड़गे जी बहुत सीनियर लीडर है, बहुत मैच्योर लीडर है, ठीक है, मगर हमें जो आवश्यकता है वो शशि थरूर की है। अगर देश के अंदर आप सही में बदलाव लाना चाहते होंगे, अगर आप सही में देश में बदलाव लाना चाहते हैं, तो आज युवकों को आकर्षित कर सकेगा ऐसा एक लीडरशिप होनी चाहिए। तो आपके पार्टी में युवा नेता की कमी नहीं है? राहुल गांधी भी नहीं, हमारी पार्टी युवा है, चीर युवा है, उसके बारे में प्रश्न नहीं है। सवाल ये है, नहीं राहुल जी ने तो कहा ना, राहुल जी ने कहा कि भाई मैं सामाजिक काम करूंगा, मुझे उन्होंने अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर लिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप लेने से इनकार किया, तो उन्होंने तो कहा कि भाई मैंने 2 बार अध्यक्ष करके चुनाव लड़े, अभी मुझे सहयोग नहीं मिला है। तो आप देश की यात्रा कर रहे हैं, वहां के प्रश्न को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर सबसे एक अच्छा मौका मिला था अभी, ये कांग्रेस ने चुनाव करवाए, ये अच्छी बात थी। चुनाव करने के बाद में उनके पास में शशि थरूर जैसे जो देश और मतलब अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति की व्यक्ति है तुम्हारे आपके पास में, उन व्यक्ति को आप लोगों ने समर्थन नहीं देते हुए, मैं तो चाहता था कि उनको अनपोस्ट करना चाहिए था। Mentioned that he has dedicated this book to his 7 grandchildren, and they age from 6 years to 21 years, and the eldest grandchild Aryaman has sent a message for him which said that, dearest Dada, your book will be a good learning for us and inspire us to serve the society in our own ways. Yashovardhan, who is his daughter's son, he sends in a message which says, Dear Nana, thank you for this insightful gift as we look to make our mark in this world. We hope to emulate your actions in public life. And my daddy, this poem has been sent by your daughter-in-law Rachna. She has sent a poem which says, The sun shines bright upon this glorious day, an incredible story of a man who's here to stay. Passion flows naturally in everything he does, always encouraging and creating the right buzz. May your thoughts flow far and wide, like sailing along a great big tide. Writing endlessly about all his experiences, sharing with the world through his unique lenses. We wish you the very best for all your endeavors, and may you sell 1 million covers. Thank you. उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं या किताब लिखना चाहते हैं या जिन्हें लिखने में रुचि है? देखिए, मैं संदेश देने के लिए तो इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मगर फिर भी कहूँगा कि कोई भी काम में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, और अगर आप ईमानदार हो तो आपकी कलम जो है वो सही दिशा में चलती है।